Very good morning, class 11. How are you? Hope you are all fine. So, children, today we are going to revise your last poem, Father to Son, written by Elizabeth Jennings. Father to Son by Elizabeth Jennings. First, I am going to read it out. This poem comprises of 4 paragraphs. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine? We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence surrounds us. Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. Longing for something to forgive. So, children, here I am going to explain you. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. The father is unhappy as he does not understand his own child, though they have lived under the same roof for years in the same house. But he knows nothing about him. But still, he wants to build up a relationship with his son that starts from the day when he was a child. पिता जो है बहुत नाखुश है अपने बच्चे से, अपने बेटे से बहुत नाखुश है. अपने ही बच्चे को समझ नहीं पा रहा है, अपने ही बेटे को समझ ही नहीं पा रहा, हालांकि वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे सालों से इकट्ठे रह रहे हैं. अब पिता ना तो उसके बारे में कुछ जानता है, ना ही उसके साथ कोई उसका तालमेल है. वो चाहता है कि जिस तरह से वो बच्चा था, उसको पुकारता था पिता उंगली पकड़ो पापा बाहर चलना, ये वो, उसी तरह बचपन से उसका एक अच्छा संबंध उसके साथ बन जाए. वो एक अच्छा रिलेशनशिप अपने बेटे के साथ बनाना चाहता है. He says, the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child
is built to my design, yet what he loves I cannot share. इसमें कवि कहता है कि पिता कह रहा है, by giving birth to such a child, the father has sown the seed of birth in the land that does not belong to him. All his pains that he took up in bringing up the child, father says, has gone waste. They both speak like strangers, and there is no sign of understanding developing between them. In features and built up, the child has grown exactly as the father had wished him to be, but things that the son loves and likes cannot be shared by the father. ये जो बीज जो मैंने बोया था अपने ही लैंड पर बोया था, बट मैं क्या जानता था कि ये कैसा निकलेगा। मैंने इस बच्चे को बड़ा करने में पैदा करके बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की, ठीक है, पर मैं समझता हूँ वो सब वेस्ट गया। ये आपस में दो अजनबियों की तरह बात करते हैं, जैसे दो अजनबी मिलते हैं और इनके बीच में आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लाइट हैज़ गॉन, जस्ट वेट अ मिनट, लॉट ऑफ लाइट गोज हियर चिल्ड्रन, आई एम सो सॉरी, हियर लाइट गोज ऑफ एवरी नाउ एंड देन इन आवर प्लेस, सो आई एम रियली सॉरी टू से दैट इट्स रियली अ डिस्टर्बेंस फॉर अस ऑल। So never mind. Again, he says that there is no understanding developing between them. उन दोनों के बीच में कोई आपस में समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की समझने की क्षमता, एक दूसरे को दृष्टिकोण की समझ वो नहीं है। हालांकि ये बिल्टअप से देखा जाए, फीचर से देखा जाए, बिल्कुल लंबा चौड़ा नैन नक्श, ये सब उसने मेरे फादर की तरह शेयर किए हैं, लेकिन उसको जो अच्छी चीज़ें पसंद लगती हैं, जो वो अच्छा समझता है, वो शायद पिताजी के साथ नहीं शेयर कर सकता। जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं वो उसके ज़माने की, शायद पिताजी को वो अच्छी ना लगे। Silence surrounds us. I would have him prodigal. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Right? There is no communion between the father and the son. Communion का मतलब there is no dialogue between the father and the son. उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है, स्तब्धता, सन्नाटा छाया रहता है। अगर पिता ड्राइंग रूम में है तो बेटा दूसरे रूम में है, और पिता दूसरे रूम में जाता है तो बेटा ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाता है। पिताजी घर में हैं तो बेटा बुलेट उठाई और बाहर चला गया। जब पिताजी बाहर गए हुए हैं तो बेटा घर में बैठा है। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप है, इस प्रकार के साइलेंस सराउंड करता है। और फादर विशेस दैट हिज एक्स्ट्रावेगेंट सन वुड रिटर्न होम। प्रोडिजल का मतलब एक्स्ट्रावेगेंट,
बेटा उसका जो फालतू के इधर उधर, उस शायद एक दिन वो वापस घर अपने आ जाएगा, वापस लौट आएगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड मेकिंग एंड कंट्रोलिंग हिज ओन न्यू वर्ल्ड, अपनी दुनिया बनाने से अच्छा है वो अपने घर वापस आ जाए। ये पिता की फरियाद है। पिता कहता है कि कहीं वो अपना संसार ना बनाए, उसको चाहिए जो गलतियां हो गई कोई बात नहीं, उसका पिता माफ़ करेगा और वो एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है। बड़े माफ़ करते हैं, इसलिए इफ ही वुड रिटर्न बैक होम, वो वापस अपने घर, हिल पार्डन हिम, वो उसको माफ़ कर देगा, उसको माफ़ी दे देगा। इट इज़ पॉसिबल दैट आउट ऑफ सॉरो, इस दुख में से ही एक नए प्यार का जन्म होगा। इट इज़ पॉसिबल दैट आउट ऑफ सॉरो अ न्यू लव विल टेक शेप बिटवीन देम। सो हिज फादर इज रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव all the sorrows that the son had given him, right? पिता उसकी सारी गलतियां माफ़ करने को तैयार है और सिर्फ वो चाहता है कि अब ये अपने घर वापस आए। जिस जगह ये निकल गया है लौट कर वापस घर आए। अब मेरा एक्स्ट्रावेगेंट बेटा है, उसको वो माफ़ कर देगा। लास्ट पैराग्राफ, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ठीक है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. अब इसमें in spite of all these differences, ये सब differences होने के बावजूद the father and the son must live in the same world and on the same earth एंड इन द सेम हाउस। हम लोगों में चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, पर हम रहते तो इकट्ठे ही हैं, साथ ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो इस तरह इतने सारे डिफरेंसेस ना समझियाँ करने के बाद, राइट, फिर भी पिता माफ़ करता है उसको और कहता है कि वो अपने वापस घर लौट आए। और वो चाहता है, पिता क्या चाहता है कि बाप और बेटा दोनों ही एक ही घर में, एक ही अर्थ पर, एक ही छत के साथ नीचे रहें। The father cannot understand when the son speaks to him. उसको समझ नहीं आती पिता को कि उसका बेटा कब बात करता है उससे। Nor can he understand why his grief is turned into anger. और ना जाने बेटा कुछ बोले या ना बोले, उसके सामने आते ही उसका ग्रीव गुस्से में बदल जाता है। उसको गुस्सा क्यों आ जाता है पिता को। Both of them try to come closer and fill up the gap that separates them. दोनों ही बाप बेटे आपस के बीच में जो दरार आ गई है, आपस के बीच में दोनों के जो खाई आ गई है, उसको खाई को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। वो जो गैप आ गया है उन दोनों बाप बेटे के बीच में, उस गैप को ब्रिज अप करने की कोशिश करते हैं। Both extend their empty hands टू दी अदर, एक दूसरे को अपने खाली हाथ पकड़ाते हैं। बोथ ऑफ देम आर इन सर्च ऑफ सम एक्सक्यूज टू फॉरगिव ईच अदर। दोनों ही अपनी गलतियों को क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं, बट दे कांट हेल्प बीइंग व्हाट दे आर। कोशिश तो करते हैं कि अब वो सब बातों को भूलकर आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप बना लें, लेकिन पिता को भी ना जाने क्यों गुस्सा आ जाता है। ये थी आपकी पोएम
written by Elizabeth Jennings, father to son। एक पिता की, आपने इस तरह से कई चिट्ठियाँ भी पढ़ी है, फादर टू सन का लेटर भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में ना, अब्राहम लिंकन वाला भी पढ़ा है। तो एक पिता ने अपने पिता बच्चे के लिए ये सब लिखा है, उन्होंने पैदा भी उसने किया है, सब कुछ है, वो उसकी इच्छा है कि वो एक अच्छा इंसान बने, राइट, और उसके कहने में रहे, मेल मिलाप से रहे, अच्छा रिलेशनशिप। बचपन में तो ठीक था, जब उसको चिप्स चाहिए थी या बाहर घूमने जाना होता था, तो जैसे जैसे समझ आई, बड़ा हुआ, वो अपने ही दुनिया में रंगा गया। ठीक है, जब बाप घर में है तो वो बाहर है, और जब बेटा घर में है तो पिता बाहर है। एक दूसरे के सामने नहीं होते, एक दूसरे के सामने आते हैं तो स्ट्रेंजर्स की तरह आते हैं, विचित्र लोगों की तरह आते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, दोनों के आसपास स्तब्धता और सन्नाटा ही छाया रहता है, राइट। तो इस तरह का पिता कहता है कि मैं अपने पुत्र को, उसकी हर एक्स्ट्रावेगेंसी को, उसकी नामकूफ़ी को माफ़ करने के लिए वो रेडी है, और वो आए और अपने आप को बदले। ठीक। सो दिस इज़ द पोएम फादर टू सन। वी हैव रिटन दी पैराफ्रेजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। नाउ इट्स योर ड्यूटी, रिवाइज कर लीजिए, इसको अच्छे से आ जाएगी। एक बार नोट्स पढ़ लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।